Now move next class of fundamental rights. Fundamental rights inserted in part 3. Start with article 12, move to article 35. Today we learn the cultural and educational rights which is inserted in article 29 and article 30. Article 29 tells us protection of interest of minorities. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण. Article 29 clause 1. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or a culture of its own shall have right to conserve the same. अनुच्छेद 29 के खंड 1 में लिखा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, जिनकी भाषा अलग है, जिनके स्क्रिप्ट्स अलग हैं, जिनके कल्चर अलग हैं, वो अपने राइट्स को कंजर्व करके रख सकते हैं, समायोजित करके रख सकते हैं. Article 29 clause 2 tells us no citizen shall be denied to admission into any educational institute maintained by state or receiving aid out of state funds on the ground of religion, race, caste, language or any of them. अनुच्छेद 29 खंड 2 माइनॉरिटीज के एजुकेशनल एडमिशन के राइट्स बताता है कि कोई भी स्टेट किसी भी पर्सन को एडमिशन देने के लिए सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकती कि क्या ग्राउंड है, उसका धर्म, उसके मूलवंश, उसकी जाति, उसकी भाषा या फिर एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी एक. तो आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. नाउ मूव आर्टिकल 30. Article 30 gives the right to establish and administer the minorities institutes. Right of minorities to establish and administer educational institute. अल्पसंख्यक अपने इंस्टीट्यूट को स्थापित कर सकते हैं और उस पर प्रशासन कर सकते हैं. अनुच्छेद 30 क्लोज 1. All minorities whether based on religion or a language shall have right to establish and administer educational institution of their choice. The state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for acquisition of such property in such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under the clause. अनुच्छेद 30 खंड 1 हमें बताता है कि माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, चाहे वो धर्म के आधार पे हो चाहे भाषा के आधार पे, वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्थापित कर सकता है, उस पर प्रशासन कर सकता है. और इस बात को इंश्योर करने के लिए स्टेट चेक करेगी कि वो इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे उनकी कॉस्ट इतनी हाई ना हो कि उनके राइट्स जो दिए गए हैं
वो हार्म हो जाएंगे। Article 30 clause 2, the state shall not discriminate against any educational institute on the ground that it is under the management of minorities, whether based on religion or a language. अनुच्छेद 30 खंड 2 हमें बताता है कि राज्य किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ग्रांट देने में। किन को ग्रांट देने में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। किस ग्राउंड पे? कि ये इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज की मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज उसके धर्म की हो चाहे भाषा की। इसी के साथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अनुच्छेद 29 और 30 समाप्त होता है। नाउ मूव टू आर्टिकल 32 बिकॉज आर्टिकल 31 was repealed in 1979. That's why we move towards article 32. Article 32. Now we read right to constitutional remedies. जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने राइट्स के अगर वायलेशन होता है तो उसकी उपचार के लिए रेमेडीज कहां प्रोवाइड किया? आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स conferred by this part. पार्ट 3 के द्वारा जितने राइट्स दिए गए हैं इनको लागू करवाने के लिए प्रबंध कहां किया है? आर्टिकल 32। अगर किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो वी कैन मूव सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 क्लॉज 1, the right to move Supreme Court by appropriate proceedings for enforcement of the rights conferred by this part is granted. तो हमारे राइट्स को सेव करने की गारंटी किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मस्ट सेव आवर राइट्स that is given in part 3. Article 32 clause 2, the Supreme Court shall have power to issue direction or a order or a writ. Writ are 5 types: habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. These are the 5 writs whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. अनुच्छेद 32 खंड 2 सुप्रीम कोर्ट की पावर बताता है कि अगर किसी भी राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? डायरेक्शन इश्यू कर सकती है, निर्देश दे सकती है, ऑर्डर पारित कर सकती है, आदेश दे सकती है, या फिर कोई रिट इश्यू कर सकती है। habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. We will read about these 5 writs in separate video because there are long and important topic. तो अनुच्छेद 32 का खंड 2 हमें सुप्रीम कोर्ट की पावर बताता है अगर कोई हमारे राइट्स का वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इश्यू कर सकती है, ऑर्डर या फिर रिट
जो उनको अप्रोप्रिएट लगे इन राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, जो इस पार्ट में कन्फर हैं। जितने भी राइट्स इस पार्ट में दिए हुए हैं उनको सबको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हैव अ पावर। आर्टिकल 32 क्लोज 3 विदाउट प्रेजुडिस द पावर conferred on the Supreme Court in clause 1 and clause 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2. अनुच्छेद 32 खंड 3 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है उन पर कोई भी बाउंडेशन लगाए बगैर पार्लियामेंट अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए किसी भी और अदालत को जो उस अदालत की लिमिट हो उसके अनुसार एक्सरसाइज करवा सकती है। मीन्स अगर पार्लियामेंट चाहे तो लोअर कोर्ट को भी पावर दे सकता है टू सेव पार्ट 3। आर्टिकल 32 क्लोज 4 द राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल दिस आर्टिकल shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution। अनुच्छेद 32 खंड 4 हमें बताता है कि इस आर्टिकल्स में दी गई कोई भी पावर या राइट्स को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है कि आप इन राइट्स को रोक सकते हैं तो यू हैव अ पावर टू स्टॉप ऑफ यूज ऑफ दिस राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीट आर्टिकल 32। नाउ मूव टुवर्ड आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 Power of Parliament to modify the rights conferred by this power in their application to force। संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 33 हमें संसद की उन शक्तियों के बारे में बताता है जो पार्ट 3 में जितने राइट्स दिए गए हैं कि उन पर एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगा सके। पार्लियामेंट may by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to। कि संसद विधि द्वारा ये जांचेगी कि जो ये राइट्स दिए गए हैं ये किस सीमा तक रहने चाहिए। आर्टिकल 33 क्लोज ए द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्टिकल 33 क्लोज बी द मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस charged with the maintenance of public order। Second restriction on the members of that forces that maintain the public order like a police। Article 33 clause C persons employed in any bureau or other organization established by the state for the purposes of intelligence or counter intelligence। उन सभी
पर्सन्स पे जो एम्प्लॉयड हैं किसी ब्यूरो में या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस के किसी पार्ट से जुड़ी हुई है। आर्टिकल 33 क्लोज डी, persons employed in or in connection with the telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau, organization referred to in clause A to C। ये उन एम्प्लॉयज पे रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में वर्क करती हैं। telecommunication system for the forces, the bureau or a organization be restricted or abrogated so as to exercise the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them। अनुच्छेद 33 हमें संसद की शक्तियों के बारे में बताता है कि संसद एक आर्म्ड फोर्सेस पे, फोर्सेस जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करती है उन पे, ब्यूरो या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलिजेंस या फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड किसी वर्क में इन्वॉल्व है या फिर टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में इन्वॉल्व है, वो टेलीकम्युनिकेशन किस पार्ट में, फोर्सेस, ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन, उनको इस लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकती है ताकि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर सकें और उनके मध्य का डिसिप्लिन मेंटेन रह सके। नाउ मूव टू आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स conferred by this part while martial law is enforced in any area। अनुच्छेद 34 हमें उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है जब किसी एरिया में मिलिट्री लॉ लागू होता है। Notwithstanding anything in foregoing provision of this part, इस पार्ट के किसी भी प्रोविजन के चलते हुए पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई Parliament may by law indemnify any person in service of the union or a state or any other person respect of any act done by him in connection with the maintenance or the restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture order or other act done under martial law in such area। कि पार्लियामेंट के पास पावर है अगर मार्शल लॉज के चलते समय किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति पार्लियामेंट कर सकती है। With this we have completed article 34. Now move to article 35. Article 35 Article 35 legislations to give effect to the provisions of this part कि विधायिका जो इस पार्ट्स के जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको इफेक्ट कर सकती है। कौन? Notwithstanding anything in
दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ है तो आर्टिकल 35 क्लोज ए tells us Parliament shall have and the legislation of state shall not, कि संसद की शक्तियां हैं लेकिन किसी राज्य सरकार की शक्तियां नहीं हैं। किसमें? टू मेक लॉ, कानून बनाने के लिए। किस किस चीज पर कानून पार्लियामेंट बना सकती है लेकिन स्टेट लेजिस्लेशन नहीं बना सकती। आर्टिकल 35 क्लोज ए सब क्लोज 1, पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक एनी लॉ इन अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ in Article 16 clause 3, Article 32 clause 3, Article 33 and Article 34। अगर इन आर्टिकल्स के रिलेशन में कोई भी लॉ बनाएगी तो वो पावर सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेशन के पास नहीं है। आर्टिकल 35 क्लोज ए सब क्लोज 2, for prescribing punishment for those acts which are declared to be offence under this part, and the parliament shall as soon as may be after the commencement of this constitution make laws for this prescribed punishment for the act referred in the subclause 2। अनुच्छेद 35 खंड 1 उपखंड 2 में पार्लियामेंट के पास शक्ति है कोई भी कानून बनाने की। किस बारे में? पुनिशमेंट के लिए। जो इस पार्ट में ऑफेंस डिक्लेयर किए गए हैं उनके बारे में अगर पुनिशमेंट तय करनी है तो कौन तय करेगी? पार्लियामेंट। Article 35 clause B, any law in force immediately before the commencement of this constitution in the territory of India with respect to any matters referred to in subclause 1 of clause A or for the punishment for any act referred to in subclause 2 of that clause shall subject to the terms thereof and any of adaptation and modification that may be made therein under Article 372 continuous in force until altered or repealed और amended by the parliament। अनुच्छेद 35 खंड भी हमें बताता है कि जो भी विधि इस संविधान के लागू होने से पहले फोर्स में थी तो वो फोर्स में रहेंगी जब तक भारतीय संसद उसमें या तो संशोधन कर दे या उनको रिपील कर दे या उनमें सुधार कर दे। तो अनुच्छेद 35 खंड 6 हमें बताता है कि पार्लियामेंट जब तक जो इस संविधान के लागू होने से पहले कानून थे जब तक उनमें एल्टर नहीं, बदलाव नहीं करेगी, रिपील नहीं करेगी, उनको समाप्त नहीं करेगी या एमेंड नहीं करेगी, तब तक एज इट इज लागू रहेंगे। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आर्टिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू।